Let us start with tissue system. In previous lecture, we had discussed that tissue are the group of cell performing common function and must have the common origin. There are different type of tissue in angiospermic plant. Two main categories are there: meristematic tissue and permanent tissue. Them are of three types. Number one, epidermal tissue system, which form epidermis or outer covering of the entire plant body. Second type of tissue system is the ground tissue system, also known as fundamental tissue system. It is mostly made up of the simple permanent tissue like parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Parenchyma and collenchyma are the living simple permanent tissue, but sclerenchyma is a dead simple permanent tissue. The third type of the tissue system is known as vascular tissue system. Now we are starting with the first type, type number A, epidermal tissue system. Epidermis form the outermost protective covering of entire plant body, outermost covering of root, stem as well as leaf. रूट की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो भी एपिडर्मिस है, स्टेम के आउटर कवरिंग और लीफ का आउटर कवरिंग भी एपिडर्मिस कहलाएगी. नाउ एपिडर्मिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों वेजिटेटिव ऑर्गन में वन बाय वन, रूट, स्टेम एज वेल एज लीफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द रूट, लेट अस कंसीडर दिस इज epidermis of root, also called as epiblema, made up of rectangular or elongated compactly arranged cell. Root epidermis made up of rectangular or elongated, and all cells are compactly arranged cell विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. क्योंकि रूट अंडरग्राउंड होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसपायर नहीं करती, इसीलिए रूट को क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होती है. लेकिन रूट के कुछ सेल जो हैं वो एक्सटेंशन फॉर्म करते हैं, एंड दिस एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल आर नोन एज रूट हेयर. पॉइंट टू बी नोटेड, root hair are not additional cell, they are just extended part of the epidermal cell. Root hair increase surface area for absorption. Absorption is a function of root hair, absorption of water as well as absorption of inorganic element from the soil. Epidermis of root is also known as epiblema. Now we are going to discuss about the epidermis of stem and leaf one by one. Second aerial vegetative organ is known as stem. Epidermis of stem, suppose this is epidermis made up of again elongated compactly arranged parenchyma cell without intercellular spaces. Few stomata are present in the epidermal cell which can cause the transpiration. Stomata are found only in young stem and loss of water takes place. Therefore, to prevent the loss of water, epidermis is covered by cuticle layer. Cuticle is present in the epidermis along with stomata. Epidermal cell or epidermis of the stem may have some additional cell. These additional cells
are known as trichome. Trichomes may be unicellular or multicellular, and when they are multicellular, they may be branched or unbranched. This trichome may be stiff और स्मूथ. स्टिफ यानी कि सख्त रहेंगे, रिजिड रहेंगे, और स्मूथ यानी कि ये मुलायम रहेंगे, हल्के रहेंगे, या फिर मोल्ड हो सकते हैं. ट्राइकोम में भी सिक्रेटरी इन नेचर, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिक्रेट कर सकते हैं. ट्रांसपिरेशन इज आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एपिडर्मिस ऑफ the third vegetative organ which is called leaf. लीफ दो टाइप्स के हैं हमारे पास. डाइकॉट लीफ की दो सरफेसेस होती हैं, अपर एंड लोअर. दोनों सरफेसेस कलर की बेसिस पर डिफरेंशिएट होती हैं. लाइक अपर सरफेस यानी कि जो डोर्सल सरफेस है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है और वेंट्रल सरफेस लाइट ग्रीन कलर. On the basis of differentiation in two surfaces, dicot leaf is also known as dorsiventral leaf. Second type is the leaf of monocot plant. Both surfaces are identical to each other. Monocot leaf also known as isobilateral leaf. Iso means same, two means bi, एंड लेटरल मीन्स सरफेसेस, दोनों सरफेस सेम है. अब लीफ का जो एपिडर्मिस है, वहां दो एपिडर्मिस होते हैं लीफ के पास में. एक होती है अपर एपिडर्मिस यानी कि अपर सरफेस, जिसे आप एडॉक्सियल सरफेस भी कह सकते हैं, और एक होती है लोअर सरफेस यानी वेंट्रल, जिसे आप एबॉक्सियल भी कह सकते हैं. दोनों सरफेसेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, बट ये डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में कि डाइकॉट लीफ के अपर सरफेस के ऊपर बहुत कम यानी फ्यू या फिर नो स्टोमेटा रहेगी ही नहीं. लेकिन उसी डाइकॉट लीफ का लोअर सरफेस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं. से कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा. Many more stomata on lower surface, few or no stomata on the upper surface. But different is the case in monocot leaf or isobilateral leaf. Both surfaces having equally distributed stomata. जितने स्टोमेटा हैं लोअर सरफेस पर उतने ही अपर सरफेस पर, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट डिफरेंस, डाइकॉट लीफ के स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है जिसे बीन शेप्ड नाम दिया गया, और स्टोमेटा के सराउंडिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं जो स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड हुए. इन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल को जो स्टोमेटा की विसिनिटी में है यानी सराउंडिंग में, इनको स्पेशल नाम दिया गया सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है. दोनों गार्ड सेल के दरमियान ये जो स्पेस है, सुराख है, पोर, जहां से वाटर ट्रांसपायर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर इंटर होगी, इस पोर को स्टोमेटल एपर्चर भी कहते हैं. टू गार्ड सेल plus stomatal aperture plus subsidiary cell, this complete structure is known as stomatal apparatus. तो याद रखिएगा कि apparatus में तीन कंटेंट आते हैं, aperture, pair of guard cell and subsidiary cell. क्यूटिकल ऑब्वियसली एपिडर्मिस की पूरी सरफेस पर रहेगी टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन. ठीक है. लेकिन जब आप मोनोकॉट लीफ का स्टोमेटा ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टोमेटा होता है डम्बेल शेप लाइक दिस. यहां भी सब्सिडियरी सेल यानी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल रहेंगे जो स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड है, एंड दिस इज द स्टोमेटल पोर. डाइकॉट
स्टोमेटा, guard cell which is bean shaped, inner wall is thick and elastic but outer wall is thin. In dumbbell shaped guard cell of monocot, both epidermis having same thickness. epidermis नहीं मतलब गार्ड सेल का इनर वाल और आउटर वाल दोनों का थिकनेस सेम रहेगा डम्बेल शेप में यानी मोनोकॉट में. दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ second or another tissue system is called ground tissue. Ground tissue are also called fundamental tissues. Fundamental tissues. अब ये जो फंडामेंटल टिश्यू हैं, रूट, स्टेम, लीफ तीनों में वेरिएशन शो करते हैं. अगर आप रूट में ग्राउंड टिश्यू स्टडी करोगे तो एपिडर्मिस तो अपने आप में एक टिश्यू सिस्टम है, वस्कुलर बंडल भी अपने आप में एक टिश्यू सिस्टम है. एनसीईआरटी में पहली लाइन दी गई फंडामेंटल टिश्यू के बारे में कि एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल, इन दोनों के अलावा जितने टाइप के टिश्यूज रहेंगे सबको कहा जाएगा ग्राउंड टिश्यू. रूट में हम स्टडी कर रहे थे कि एपिडर्मिस के बाद डायरेक्टली कॉर्टिकल रीजन लग जाता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रूट चाहे मोनोकॉट की हो या डाइकॉट की, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं पाई जाएगी. कॉर्टिकल रीजन के बाद में इनर बाउंड्री जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं. एंडोडर्मिस भी एपिडर्मिस की तरह होती है. elongated barrel shaped compactly arranged cells without intercellular spaces. कुछ एंडोडर्मिस के सेल अपने सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन मटेरियल का डिपोजिशन करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो येलो से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सुबेरिन है जो वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है, मतलब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस. इस सुबेरिन की लेयर को नाम दिया गया कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप हाइड्रोफोबिक है. रूट यहां पर कॉर्टिकल रीजन है और यहां पर है एपिडर्मिस और ये फॉर एग्जांपल रूट हेयर. जब वाटर एब्जॉर्ब होगा कॉर्टिकल रीजन से एंडोडर्मिस तक वाटर पहुंचेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को ट्रांसपोर्ट होने की परमिशन नहीं देगी क्योंकि वो सुबेरिन से बनी है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल. कैस्पेरियन डिड नॉट अलाउ टू क्रॉस द वाटर. फिर वाटर को जब अंदर पहुंचना ही है क्योंकि यहां पर वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम पर जाइलम तक वाटर को पहुंचना है, तो वाटर उन एंडोडर्मल सेल को क्रॉस करेगा जिनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, और एंडोडर्मिस के वो सेल जो विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप हैं उन्हें नाम दिया गया पैसेज सेल. तो वाटर ट्रांसपोर्ट बाय द पैसेज सेल. ठीक है. एंडोडर्मिस के बाद जो रीजन है यहां पर इलोंगेटेड पेरेन्काइमस सेल प्रेजेंट रहेंगे, थिक वॉल, और ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं. ये ब्लू कलर के जितने सारे टिश्यूज हैं इन सबको नाम दिया गया पेरीसाइकल. पेरीसाइकल टिश्यू जो स्पेस देते हैं वस्कुलर बंडल को, जाइलेम और फ्लोएम को. यहां पर फॉर एग्जांपल ये जाइलेम है एक्स, फ्लोएम अनदर रेडियस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा क्योंकि रूट में वस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं. रेडियल का मतलब हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पे समझ लीजिए कि जाइलेम एंड फ्लोएम आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली. जाइलेम आया, फिर फ्लोएम, फिर जाइलेम, फिर फ्लोएम. जिस रेडियस पर जाइलेम आएगा वहां पे फ्लोएम नहीं आ सकता, और जिस रेडियस पर फ्लोएम है वहां पर जाइलेम नहीं है. जाइलेम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड अल्टरनेटिवली ऑन डिफरेंट रेडाई. इज कॉल्ड रेडियल वस्कुलर बंडल विच इज फाउंड इन मोनोकॉट रूट एज वेल एज डाइकॉट रूट. पेरीसाइकिल की दो बातें याद रखिए. एक, इसने स्पेस प्रोवाइड किया है वस्कुलर बंडल को, और दूसरा पेरीसाइकिल से इनिशिएट होगी लेटरल रूट्स यानी कि सेकेंडरी रूट. मॉर्फोलॉजिकली फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी टैप रूट है,
इसकी जो ब्रांचेस हैं इन्हें कहते हैं लेटरल और सेकेंडरी रूट। ये ब्रांचेस पेरिसाइकल से ओरिजिन हुई, डीपनेस से बाहर निकली, इसीलिए लेटरल रूट को हम कहेंगे कि भाई ये इंडोजीनियस ओरिजिन से हैं। लेटरल रूट्स आर इंडोजीनियस इन ओरिजिन। यहां पर एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, किसी भी टर्म से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सेंटर मोस्ट रीजन में अब हम आ जाएंगे, तो यहां पर फिर से कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमस सेल है। दिस सेंट्रल मोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज पिथ। क्योंकि सेंट्रल है इसीलिए इसे मेड्यूला भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत जनरल टर्म है, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी। पिथ को मेड्यूला हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको आने वाले टॉपिक में मेड्यूलरी रे पढ़ना है, क्योंकि वो मेड्यूला से यानी पिथ से अराइज होती है। एंडोडर्मिस से अंदर जितना भी टिश्यू सिस्टम है, यानी कि पेरिसाइकल और पिथ, वस्कुलर बंडल, ये सब कहलाएंगे, मतलब टोटल स्ट्रक्चर इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। इन सभी को मिलाकर कलेक्टिव टर्म दी गई स्टील। ये रूट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। अब हम ग्राउंड टिश्यू डिस्कस करेंगे स्टेम के अंदर, और स्टेम में भी हमारे पास में दो अलग अलग केसेस हैं, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। पहले हम डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमिकल फीचर स्पेशली ग्राउंड टिश्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राउंड टिश्यू के लिए भी एपिडर्मिस हमको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ये ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अपने आप में एक टिश्यू सिस्टम है, जिसके ऊपर क्यूटिकल तो रहेगी यंग स्टेम के अंदर, और क्यूटिकल के अलावा ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहेंगे। इन्हें लेटरल अपेंडेजेस कहते हैं। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे शुरू होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। डाइकॉट रूट में सबसे पहला एक रीजन है, इस रीजन को कहते हैं कॉर्टेक्स। डाइकॉट, ये बार बार नाम याद रखना है आपको। कॉर्टेक्स इन डाइकॉट कंसिस्टिंग ऑन 3 सब जोन्स। यहां पर 3 सब जोन है कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स कंसिस्टिंग ऑन 3 सब जोन्स। फर्स्ट यानी कि आउटर मोस्ट सब जोन को नाम दिया गया हाइपोडर्मिस। फिर से ये बार बार रिवाइज करना है कि आप एक एक टिश्यू जो पढ़ रहे हैं वो कौन से स्टेम का है, यानी डाइकॉट स्टेम का। हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, क्योंकि मोनोकॉट में यही हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की डेवलप होती है, और हम डाइकॉट पढ़ रहे हैं। एपिडर्मिस से नीचे रहेगी 3 से 4 राउंडेड लूजली अरेंज पैरेन्काइमस सेल की लेयर्स। उन तीनों चारों लेयर को कहा जाएगा कॉर्टिकल रीजन। डायग्राम में भी हम ड्रॉ करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इनरमोस्ट सबजोन ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। रूट का जो एंडोडर्मिस था, उस एंडोडर्मिस में मौजूद थे कैस्पिरियन स्ट्रिप, जो वाटर को प्रिवेंट करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन क्योंकि ये स्टेम है, वो भी डाइकॉट स्टेम, इसमें एंडोडर्मिस के जो सेल हैं उनमें कैस्पिरियन स्ट्रिप तो नहीं रहेगी, सुबेरिन डिपोजिशन नहीं रहेगा, लेकिन एंडोडर्मिस के सेल अपने अंदर स्टार्च को जरूर स्टोर करेंगे। स्टार्च स्टोरेज सेल। स्टार्च को स्टोर करने की वजह से एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट नाम दिया गया। इन विच स्टेम? डाइकॉट स्टेम। ठीक है, कॉर्टेक्स कंप्लीट हुआ तीनों सब जोन के बाद। अब कॉर्टेक्स के बाद यानी एंडोडर्मिस के अंदर जो रीजन आएगा, उस कंप्लीट रीजन को हम नाम दे देंगे स्टील, जिसमें फिर से सब रीजन से अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। स्टील में सबसे पहला रीजन आपको मिल जाएगा पेरिसाइकल का। अब यहां पे हमको डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी हो गई है, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से एक दर अलग से डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो दिस इज व्हाट एपिडर्मिस, जो ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा नहीं है पर ड्रॉ करना जरूरी है। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। वन लेयर और फ्यू लेयर्स की होती है हाइपोडर्मिस, बट हम एक ही लेयर ड्रॉ करेंगे। कॉर्टेक्स का सेकंड रीजन राउंडेड लूजली अरेंज पैरेनकाइमा सेल्स हैं। ये 3 से 4 लेयर्स होती हैं, इन्हें कहते हैं कॉर्टिकल रीजन। और कॉर्टिक्स का जो इनरमोस्ट सबजोन है इसे हमने नाम दिया था एंडोडर्मिस। स्टार्च शीट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये अपने अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च ग्रेन स्टोर करते हैं। अब वस्कुलर बंडल को जगह देगा ये पेरिसाइकल रीजन, तो यहां पर इलोंगेटेड सेल्स रहेंगे कॉम्पैक्टली अरेंज, जो हम वस्कुलर बंडल के बाद ड्रॉ करेंगे। देखिए ये है डायकॉट स्टेम। स्टेम के अंदर वस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट, और कॉन्जॉइंट का डेफिनेशन ये है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट जॉइंटली ऑन द सेम रेडियस। अगर ये सेंटर है यानी पित्त, यहां से आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो जिस रेडियस पर जाइलम है उसी रेडियस पर फ्लोएम भी है। दिस इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। यहां पर हम लिख सकते हैं कि वस्कुलर बंडल को जगह किसने प्रोवाइड किया, पेरिसाइकल ने। वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, ठीक है। वस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट शो करते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट स्टेम। पहचान है ये डायकॉट की कि वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन द रिंग। नेक्स्ट, वस्कुलर बंडल आर ओपन। अगर वस्कुलर बंडल के दरमियान यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाएगा। अगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है तो ऐसे वस्कुलर बंडल को कहा जाएगा ओपन वस्कुलर बंडल, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आप देखिए ये एंडोडर्मिस है, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस, और ये है फ्लोएम। एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकल रीजन ही है, पर यहां स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आ गए। These sclerenchyma tissue between endodermis and phloem are known as semilunar patches। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायकॉट स्टेम के अंदर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सेमीलूनार पैचेस आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ये याद रखना है आपको, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट डेथ टिश्यू है। और अदर जो रीजन है यहां पर ये फिर पैरेनकाइमा सेल अपनी पेरिसाइकल कंप्लीटली फॉर्म कर देंगे। ये पेरिसाइकल पैरेनकाइमा से बनी। येलो कलर्ड सेल स्क्लेरेनकाइमा है जिन्होंने सेमीलूनार पैचेस फॉर्म किया, और ब्लू कलर सेल पैरेनकाइमा है जो सिंपल पेरिसाइकल फॉर्म करते हैं। फिर जाइलम के नीचे भी पेरिसाइकल के कुछ सेल कंटिन्यू रहेंगे, और सेंटर मोस्ट पोर्शन आएगा, इसका नाम है पित्त, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में भी मोर और लेस सिमिलर हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल क्लोज रहेंगे विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ, और मोनोकॉट स्टेम में सेमीलूनार पैचेस नहीं पाए जाएंगे। इट इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट स्टेम, दैट इज सेमीलूनार पैचेस। डायकॉट स्टेम का जो पित्त है ये बहुत ज्यादा स्मॉल और इनकॉन्स्पिकियस होता है। जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो पहचान भी नहीं पाएगे कि पित्त का रीजन कितना है, लेकिन अपोजिटली मोनोकॉट में पित्त लार्ज और कॉन्स्पिकियस होती हैं विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो डिफरेंस याद रखिए, मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना है, डायकॉट का हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमा, ठीक है। सेमीलूनार पैचेस का डिफरेंस है, वस्कुलर बंडल ओपन क्लोज का डिफरेंस है, लेकिन दोनों स्टेम में रहेंगे कॉन्जॉइंट ही। स्मॉल पित्त और लार्ज पित्त का डिफरेंस है, बाकी सारे कैरेक्टर सेम रहेंगे ग्राउंड टिश्यू के। नाउ ग्राउंड टिश्यू इन केस ऑफ लीफ,
अब थर्ड वेजिटेटिव ऑर्गन देख लेते हैं। लीफ चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, लीफ में जो मीजोफिल टिश्यू होते हैं, मीजोफिल, ये दो टाइप के होते हैं। एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, P for parenchyma, and another is spongy parenchyma। ये दोनों मिलकर के ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दोनों में, पैलिसेड में भी और स्पॉन्जी में भी। और आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। एपिडर्मिस है लीफ का। अब लीफ में दो एपिडर्मिस होते हैं, अपर सरफेस को अपर एपिडर्मिस कहेंगे, यानी कि एडेक्सियल डोर्सल सरफेस, और जो लोअर एपिडर्मिस है इसे वेंट्रल, यानी कि एबैक्सियल सरफेस। शुरुआत करते हैं एडी मतलब एडाक्सियल सरफेस से। ये देखिए बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा सेल है, थिक वॉल, कॉम्पैक्टली अरेंज, और इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक सेल हैं, इनके बारे में आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ोगे कि क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लैट सरफेस होता है वो सेल वॉल से पैरेलल होता है, ताकि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो एडाक्सियल के बाद पैलिसेड पैरेन्काइमा, और पैलिसेड पैरेन्काइमा से नीचे होते हैं राउंडेड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा स्पेस फ्री है, और ये स्पेस वाटर को अपने अंदर स्टोर करती है, इसीलिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है इसे वाटर कैविटी भी कहते हैं। These are all about the ground tissue in root stem and leaf। अब हम डिस्कस करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू यानी वस्कुलर बंडल, जिन्हें फेसिकल्स भी कहते हैं या फेसिक्यूलर टिश्यू भी कहते हैं। वस्कुलर बंडल दो टाइप्स के हैं। प्लांट बॉडी जब सीड से जर्मिनेट होकर बाहर निकलती है, प्लांट जैसे जन्म लेता है, तो पहले से जो वस्कुलर बंडल प्लांट में मौजूद रहेंगे उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी वस्कुलर बंडल, यानी प्राइमरी जाइलेम, ये रोमन नंबर 1 है, और प्राइमरी फ्लेम। देखिए प्राइमरी जाइलेम में फिर से दो केसेस हैं। एक होता है फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलेम, जिसे प्रोटोजाइलेम कहते हैं, और एक होता है प्राइमरी जाइलेम में भी थोड़ा लेट फॉर्म होने वाला जाइलेम, यानी कि लेटर फॉर्म्ड जाइलेम। इसे मेटाजाइलेम के नाम से जाना जाता है, मेटाजाइलेम। वस्कुलर बंडल की जो टाइप्स हैं, हम पहले प्रोटोजाइलेम वर्सेस मेटाजाइलेम के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। वस्कुलर बंडल आर ऑफ टू टाइप with respect to the arrangement of protoxylem and metaxylem। Number 1 is endarch vascular bundle। endarch vascular bundle का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो प्रोटोजाइलेम है या प्रोटोफ्लोएम भी कह सकते हैं आप, ये हमेशा सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, और जो ब्रॉड जाइलेम है, मेटाजाइलेम की साइज ब्रॉड होती है, प्रोटोजाइलेम नैरो होता है। मेटाजाइलेम हमेशा बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी में लोकेटेड होता है। तो डायग्रामेटिकली आप यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज सपोज एंडार्च वस्कुलर बंडल, ये एंडोडर्मिस है, अंदर का रीजन है स्टील। अब देखिए वस्कुलर बंडल का ये डायरेक्शन, फिर ये वस्कुलर बंडल है, ब्रॉड पोर्शन पेरिफेरी की तरफ है और नैरो सेंटर की तरफ। प्रोटोजाइलेम सेंटर्ड, मेटाजाइलेम पेरिफेरी। इट इज endarch। endarch vascular bundle is found in stem of dicot as well as stem of monocot। ठीक है,
Second type of vascular bundle on the basis of proto and metaxylem is called as exarch type of vascular bundle. exarch मतलब exit, exit मतलब बाहर, x है ये, इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, एक्सार्च वस्कुलर बंडल। इसमें अपोजिट केस रहेगा कि भाई जो प्रोटोजाइलम है या प्रोटोफ्लोएम है ये बाहर की तरफ रहेगा, मतलब पेरीफेरी, और जो मेटाजाइलम है या मेटाफ्लोएम है ये सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। एक्सार्च वस्कुलर बंडल रूट में पाए जाएंगे, चाहे मोनोकॉट का रूट हो या डायकॉट, दोनों रूट में वस्कुलर बंडल रहेंगे। यस, एक्सार्च डायग्रामेटिकली आप इस तरह शो कर सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है रूट का, एंडोडर्मिस। अब देखिए कि आपको नैरो रीजन पेरीफेरी में ड्रॉ करना है और ब्रॉड रीजन सेंटर में, इस तरह से। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सार्च वस्कुलर बंडल। ओके, तो ये प्रोटोजाइलम वर्सेस मेटाजाइलम के रिस्पेक्ट में। अब जाइलम वर्सेस फ्लोएम की बेसिस पर हम वस्कुलर बंडल डिस्कस करेंगे। तो एक होता है रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल वस्कुलर बंडल, याद रखिए कि आर से रेडियल होता है और आर से रूट, तो रेडियल वस्कुलर बंडल रूट में पाए जाएंगे, डायकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में भी। ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल की डेफिनेशन ऐसी है कि इस वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों अल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट। दूसरा कैरेक्टर कि जाइलम और फ्लोएम दोनों भी डिफरेंट रेडियस पर रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ ऑन द डिफरेंट रेडाई। जिस रेडियस पर जाइलम आएगा वहां फ्लोएम नहीं आ सकता, और जिस रेडियस पर फ्लोएम आएगा उस पर जाइलम भी नहीं आ सकता। तो फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं वस्कुलर बंडल ड्रॉ करने की। ये फॉर एग्जांपल जाइलम है और ये फ्लोएम है, फिर यहां पर जाइलम और यहां पर फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, यानी पॉइंट नंबर 1, जाइलम एक ही रेडियस पर या एक ही डायमीटर पर आएंगे, उस डायमीटर पर फ्लोएम नहीं आएगा। जिस रेडियस या डायमीटर पर फ्लोएम आएगा उस पर जाइलम नहीं आ सकते। अनदर टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। ये रेडियल के अपोजिट हैं, इसीलिए ये दोनों कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल स्टेम में पाए जाएंगे। दो टाइप की स्टेम, डाइकोटिलिडोनस स्टेम एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, इसका कैरेक्टर ऐसा है कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट जॉइंटली, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियस पर, एक ही डायमीटर पे। तो आप यू लिख सकते हैं कि ऑन द सेम रेडियस और सेम डायमीटर रेडियस। फिर से इसको शो कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, कोई भी मोनोकॉट स्टेम या फिर डायकॉट स्टेम। वस्कुलर बंडल इस तरह के भाई जाइलम सेंटर में प्रोजेक्ट करेगा और फ्लोएम पेरीफेरी में, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम टू द सेंटर, फ्लोएम टू द पेरीफेरी एंड ऑन द सेम रेडियस और सेम डायमीटर। तो दिस इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, हम ये कैम्बियम का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम then vascular bundle are called open. If cambium is absent between xylem and phloem, so cambium is called closed. Sorry, vascular bundle are called as closed. जो ओपन वस्कुलर बंडल है ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करके डायमीटर बढ़ाएंगे और ओडी स्टेम, ओडी रूट फॉर्म करेंगे। लेकिन जो क्लोज वस्कुलर बंडल है ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करेंगे, ना ही डायमीटर या गर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं।
This is all about the tissue system.